Hello everyone, it's me Varsha and today we are going to study about the motion and measurement of distance. Okay, so here are the following topics we are going to learn about today. The first topic is the transportation story. When the transportation started at the very past when the earth had developed. People just used to walk and go somewhere if they needed. They had no means of transportation to travel like in today's. Today you have cars, trains, airplanes, etc., etc. But at that time nothing was available, so people just used to walk and go. Then people get to know that animals could help them in the traveling. Then they started using the camels, horses, donkeys, this type of animals, etc., etc., to make the traveling easier. Okay, after some time they invented wheels, and they made cards, block cards, etc., this type of things. Okay, then after a while when they get to know that animals could not help them in crossing the rivers. Okay, they made ships, boats, etc. After some time again they made engine. Now we are using engines everywhere now, so this is the engine. So after a while that again they get to know these type of things only can carry only few people, not more people at one time. So they made big things like airplanes, trains, boats, this type of things, and they carry more people at one time. This is the end of the transportation story. Now what is measurement? Measurement means the quantity the quantity we get to know, the fixed quantity we get to know about any unknown quantity. ओके, किसी भी अननोन क्वांटिटी का जो फिक्स क्वांटिटी हमें पता चले उसी को कहते हैं मेजरमेंट. ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई वो है, फॉर एग्जांपल व्हाट कैन आई से, किसी भी चावल का अगर हम लोग को बोला के रख दिया, बोरी रख के रख दिया, तो वी डोंट नो हाउ कितना है उसमें. ओके, तो हम लोग को उसको मेजर करना पड़ेगा. तो मेजर करके हम लोगों को पता चलेगा उसमें 5 kg, 2 kg, 20 kg, 30 kg कितना है. ओके, तो सेम इन वाटर, लिक्विड थिंग्स. ओके, वाटर, जूस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जिसमें हम लोग मेजर कर सके उसी को कहते हैं मेजरमेंट. ठीक है, मेजर करने को कहते हैं मेजरमेंट. नेक्स्ट आता है कि हाउ पीपल्स यूज टू मेजर very fast. Okay, people use their hands, this part. This if they needed the length of anything, what is the length of, for example, this, what is the length of my hand? So some people said 4 hands, 5 hands, 6 hands, like this. Okay, but how is it possible? Oh sorry, people use also feet, also their feet and arms also. Okay, so and how is it possible? Everyone's feet, hands were not of same length. या किसी का हाथ बहुत छोटा होगा, किसी का बहुत बड़ा होगा, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं था कि एक्सेप्टेबल नहीं था पूरे वर्ल्ड के लिए. ठीक है, तो इसीलिए इसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाया गया. स्टैंडर्ड यूनिट्स पर लाइक वेट को मेजर करने के लिए केजी, ग्राम, दिस एक्सेट्रा. और फिर लिक्विड थिंग्स को लीटर्स, मिलीलीटर्स, फिर लेंथ को मीटर, किलोमीटर, दिस. ओके, दिस टन्स, ये सब थिंग यूज़ किया गया. और इन सब कुछ एक साथ रहेगा. सबका जो कॉम्बिनेशन है, इसका नेम है एसआई यूनिट. ओके, ये पूरा जो इन लोगों का जो ये यूनिट का एक क्या कहो उसको, कंपेरिजन है, तो इसी को कहते हैं एसआई यूनिट. ओके, तो नेक्स्ट आता है कि स्केल. How people started using scale. First of all, people use ear. What is ear? For example, take your thumb, like your thumb in front of your mouth, and this is from your thumb to this part, the end of your forefinger. तो इसी को कहते थे 1 ear. But it is not acceptable because सबका हैंड का लेंथ इक्वल नहीं था, तो उससे वो भी कैंसिल हो गया. उसके बाद आया स्केल. स्केल से कैसे हम लोग
कर सकते थे। फिर स्केल में मीटर्स सेंटीमीटर्स है उसमें, तो वो सेंटीमीटर जो है सबके लिए इक्वल होगा। वो जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है मिलीमीटर किलोमीटर्स, वो सबके लिए इक्वल लगेगा, किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम नहीं होगा। इसीलिए जो मेजोरिटी है उसने इस चीज़ को, स्टैंडर्ड इस यूनिट को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो अभी हम लोग स्केल कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्केल उसमें सेंटीमीटर्स होते हैं। आई थिंक होप यू ऑल नो हाउ टू मेजर थ्रू अ स्केल। आप लोगों को पता है कैसे किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। पर ठीक है, अभी हम लोगों को पता चल गया कि एक स्ट्रेट पाथ को या स्ट्रेट चीज़ को कैसे मेजर किया जा सकता है स्केल से। पर अगर वो कर्वी हुआ तो व्हाट इज कर्वी, ऐसे ऐसे जो पाथ होता है उसको कर्वी कहते हैं। ओके, तो उसको कैसे मेजर करोगे। स्केल से तो मेजर कर सकते क्योंकि स्केल फ्लेक्सिबल नहीं होता है ना। तो उसी को इसलिए एक थ्रेड लो, उसको उस कर्वी पथ में उसे बिठाते चले जाओ। उस जो कर्वी जो पाथ है उसमें बिठाते चले जाओ ऐसे करके। फिर उसको लेके आके स्केल के सामने रख दो और फिर स्केल से उसका मेजरमेंट ले लो। ओके, तो इसी से मेजर किया, ऐसे ही मेजर किया जाता था। ठीक है, अभी आई थिंक हम लोग स्केल से कैसे मेजर कहते हैं ये होप आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आई एम नॉट गोइंग टू शो नाउ। देन आता है व्हाट इज मोशन। ओके, व्हाट इज मोशन। मोशन मीन्स द चेंजिंग ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज नोन एज मोशन। ओके, किसी भी चीज़ का पोजिशन चेंज होना, किसी भी चीज़ का पोजीशन चेंज होना टाइम के साथ साथ। फॉर एग्जांपल मैं भी मूव करी इधर से उधर हाथ, मेरा टाइम एक सेकेंड्स में ऐसे ऐसे मेरा हाथ हो रहा है, मेरा फेस हिल रहा है, तो वो जो पोजीशन उसका जो चेंज हो रहा है उसी को कहते हैं मोशन। द मोशन मीन्स द चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज नोन एज मोशन। फिर आता है रेस्ट और मोशन। क्या होता है रेस्ट और मोशन? होता है रेस्ट मीन्स आपका बॉडी, कोई भी बॉडी अगर लो कोई भी चीज़ एक रेस्ट में है, वो हिल नहीं रहा, उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, इसीलिए उसे कहते हैं रेस्ट। द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। और मोशन मीन्स वही नो व्हाट मोशन, वही अभी हम लोगों ने पढ़ा। मोशन क्या होता है? द चेंजिंग ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ओके, तो रेस्ट और मोशन का डिफरेंस यही है। रेस्ट अ बॉडी do not move with the respect of time, but in motion a body moves with the respect of time. Okay, next आता है types of motion. अभी how many types of motion are there? There are 3 types of motion: translatory motion, rotatory motion and oscillatory motion. Okay, तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन वो है जिसमें एक बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, a body which is traveling the same distance at the same time. For example, a car is moving 1 kilometer at 1 hour. The car is moving 1 kilometer in every 1 hour. वो कभी 2 आवर में 1 किलोमीटर, कभी हाफ आवर में 2 किलोमीटर, ऐसे नहीं कर रहा है। वो हर 1 किलोमीटर में 1 आवर में ही वो ट्रेवल कर रहा है। तो इसी को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, नेक्स्ट आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मीन्स द object that is moving on its axis but not changing its position is known as rotatory motion. ओके, रोटेटरी मोशन फॉर एग्जांपल फैन, वो अपने एक्सिस में घूम रहा है। ओके, वो घूम ही रहा है पर उसका पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा है। अभी वो चल थोड़ी ना सकता है ना, ऑब्वियसली द फैन कैन नॉट वॉक ऑब्वियसली। तो इसी को कहते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का एक और नेम भी है सर्कुलर मोशन। ओके, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है पर इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट है ऑसिलरी मोशन। व्हाट इज ऑसिलरी मोशन? ऑसिलरी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, उसी को कहते हैं ऑसिलरी मोशन। अभी टू एंड फ्रो क्या है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक पार्ट, कभी इधर कभी उधर, सिर्फ अपना एक ही पार्ट में, एक ही एक्सिस वाला पार्ट में वो इधर एक बार ऐसे कर रहा है।
वो ना ही ऐसे घूम रहा है, ना ही ऐसे, ना ही कभी ज़्यादा इधर ज़्यादा उधर जा रहा है, ठीक है। वो हर टाइम में, हर बार इधर उधर एक टाइम में ऐसे ही घूम रहा है, ओके। टू एंड फ्रो डायरेक्शन में जो घूम रहा है उसी को कहते हैं उसी रिलेटेड मोशन, ओके। This is the end of the chapter. Hope you all like it and you all have understood it. If you have any confusion regarding this chapter, you can let me know in the comment section. So hope you all like it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो like it and subscribe to it, and don't forget to share the video. Okay, help your friends to know about this chapter. Okay, thank you.